साउंड बताइएगा, कंफर्म कीजिए इसको, कंफर्म कीजिए साउंड, साउंड आ रहा है। चलिए, वेलकम अगेन in new class. Finally, we will discuss today some questions from dimension and competitive level examination. Finally, NEET 2024, NEET 2022, 21, 20, and some important questions from dimension topic. First of all, we will discuss some important information about a dimension. So, what is dimension? This is dimension. Actually, dimension is what? The powers of a physical quantity, the powers of the physical quantity which represents how many times the physical quantity repeated. Means what? By the way, we have an example m power 2. Means what? This is the power of m is 2. It means to represent the m is multiplied 2 times. That means physical quantity is m, that is m is what? Mass. So mass is represented how many times and how many times is it repeated. तो कितनी बार ये repeat होगा, that is called dimension. That means the powers is known as the dimension of that physical quantity. सिर्फ इसके powers को ही हम इसका dimension कहेंगे. अगर इसका formula, generally 3 physical quantities are the fundamental physical quantities, that is mass, length and time. 3 quantities. So finally we will write the dimension in terms of big bracket m, l and t, and the powers of these physical quantity, that will be the dimension. So x is the dimension of m, y is the dimension of l and z is the dimension of t. So ये x डायमेंशन m का हुआ, y डायमेंशन l का हुआ, z डायमेंशन t का हुआ. अब ये डायमेंशंस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को, वो देख लेते हैं. सम डायमेंशंस और सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर, फर्स्ट, generally there are 7 fundamental physical quantities and that physical quantities having some dimensions. So what will be the representation? So first is the mass. So first is the what? Mass. Serial number, by the way, and physical quantity and the representation. And representation. So this is what? Serial number 1, that is called mass. Physical quantity is mass, and whose representation formula is what? M. When it is written in this format, then it is known as the dimension of this mass. So serial number 2, length. Length is represented like this. Number 3, temperature. Temperature. So this is represented by T. And now number 4, mass, length, time, actually time. So whose representation, by the way, temperature is what is? Temperature is Kelvin, that is K. Time is T. Time is T. Okay. Number 5, luminous intensity. Luminous intensity, that is candela and represented by CD. Number 5, luminous intensity
Number 6, mass, length, time, temperature, luminous intensity. 6 is what? And 7, the amount of substance, that is what? 7 quantities, and luminous intensity, electric current. Have one more quantity is electric current. So finally what? Electric current. Electric current. And one important information is electric current का representation आप लिखोगे A, but in H.C. Verma book it will be represented as I. उसमें आप I से representation देखोगे, ठीक है? So ये serial number 6 and 7 is what? Amount of substance. Amount of substance. Amount of substance. That is what? Mole. That is what? Mole. M-O-L-E, mole, and representation of mole is only M-O-L. So these are 7 fundamental physical quantities, and the representation of these fundamental physical quantities are this. So we will write the formula, some examples of these dimensions is what? By the way, this is example area. Then we will discuss the formula and the questions of NEET. So example is what? By the way, it is area. So area is defined as what? Length into breadth. So length has dimension L. Breadth has dimension L. So finally we will have L square. So finally area has dimension L square, or in dimensional formula we have to write this M0 L square and T minus 2 or T inverse 2. दोनों फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं इसको, L स्क्वायर में भी और M0 L स्क्वायर और T0. So ये दो फॉर्मेट हो गया. T0 means what? Any physical quantities having power 0, having value what? 1. So आप यहाँ 1 लिखो into L square लिखो, या M0 L square और T0 लिखो. So finally it is the dimension of area. Or by the way, it is velocity. Velocity, so displacement by time. Velocity is equal to displacement by time. So displacement has dimension what? L. Time का dimension क्या होगा? T. So it is L. और T ऊपर जाकर के T inverse बना देगा. So आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, M0 L T inverse और T minus 1. तो ये हो गया डायमेंशन वेलोसिटी का. इस तरह से डायमेंशन लिख सकते हो. एक इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल दे रहा हूं, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है वो समझ लोगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम L तब लिखेंगे जब वो लेंथ को इंडिकेट करता हो. तो मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला L आता है. कौन कौन सा? एग्जाम्पल हो गया लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, रेडियस, है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे वेवलेंथ, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका L होगा. तो वो क्या? एवरी फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ, दैट मींस इट हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला इज L. सो फाइनली आपको ये बेसिक चीजें हैं जो याद रखना है डायमेंशन में. अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे. बेसिक चीज फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को याद रखिएगा. फर्स्ट है आपका मास. मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आप M लिखोगे, कैपिटल M. लेंथ, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप L लिखोगे. टाइम, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप T लिखोगे. टेम्परेचर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप K लिखोगे. इलेक्ट्रिक करंट, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप I भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा जिसको आप मोल लिख सकते हो, है ना. और इसको एक और नाम से जानते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं इसको. किसी किसी बुक में आप ये भी देखोगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो दोनों नाम से इसको जाना जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ मैटर. और दोनों का डायमेंशन मोल होगा. एंड वन इंपॉर्टेंट लाइन इज, है ना, luminous intensity, that is candela. So finally we will discuss some questions from NEET. So next
So, question. NEET 2024 एकदम करंट क्वेश्चन है, अभी फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसमें पूछा गया है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज क्या होंगी, है ना। सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अ फोर्स डिफाइंड बाय, एक फोर्स को डिफाइन कर दिया गया, डिफाइंड बाय F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वेयर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट टाइम t। यहां पे टाइम क्या है, t टाइम है। क्वेश्चन पूछा है द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा कंटेंट्स, है ना। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is dimensionless। इनमें से कौन सा क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। फर्स्ट ऑप्शन देता है बीटा टी बाय अल्फा, सेकेंड ऑप्शन देता है अल्फा टी बाय बीटा, थर्ड ऑप्शन देता है अल्फा बीटा टी, और लास्ट ऑप्शन देता है अल्फा इंटू बीटा बाय टी। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, है ना, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये नीट 2024। सो सॉल्यूशन में आपको एक चीज अच्छे से समझनी होगी, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, ये कहता है कि अगर किसी एक डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इस तरह से लिखा जाए MLT, और इसका अगेन इधर भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हो MLT, और अगर इन दोनों के पावर्स कुछ डिफरेंट टर्म्स हो, एज फॉर एग्जाम्पल दिस इज x, y एंड z, एंड दिस इज p, q एंड r। सो x m का पावर है, l का पावर y है, t का पावर z है, यहां m का पावर p, l का पावर q और t का पावर r है। तो ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो डायमेंशन LHS का है वही डायमेंशन RHS का भी होगा। दैट मीन्स डायमेंशन इज व्हाट, द पावर्स। सो m का पावर यहां जो x है वही m का पावर p के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू p। ये होगा फंक्शन फर्स्ट। सेकेंड क्या बोलेगा, l का पावर l के पावर के इक्वल, सो दिस इज y इज इक्वल टू q, ये सेकेंड। और थर्ड क्या एक और ऑप्शन मिल रहा है, z इज इक्वल टू व्हाट, r। तो ये तीन क्वेश्चंस, ये तीन फॉर्मूलाज मुझे कहां से मिले, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बस शॉर्ट में इतना समझो कि LHS का जो डायमेंशन होता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होता है, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल हो जाता है। अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास मेन फंक्शन क्या दिया हुआ है, फोर्स है। सो मेन फोर्स इज व्हाट, F, एंड F इज फाइनली अल्फा टी स्क्वायर एंड प्लस बीटा टी। चलो, अब जो फोर्स है वो दो टर्म में गिवन है, तो ध्यान रखें कि जितने भी टर्म्स होंगे हर एक टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है। इट मींस F का वैल्यू अल्फा टी स्क्वायर के भी इक्वल होगी, और जो फोर्स की वैल्यू है वो बीटा टी के भी इक्वल होगी। अब अल्फा और बीटा फाइंड कर लीजिए, और इनके जगह पर ऑप्शन से आप ऑप्शन चुन लीजिए। क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, F बाय टी स्क्वायर। अब आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि मुझे डायमेंशन याद होना चाहिए। आपको सबकी क्वांटिटीज का डायमेंशन याद होना चाहिए। यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी यूज किया गया है, फोर्स और टाइम। तो F जो है वो फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन होता है M L T इनवर्स 2। ठीक है। अब
टाइम t का डायमेंशन क्या होता है ऑलरेडी बताया हुआ है, दिस इज व्हाट t, आप पुट कर दो, सो अल्फा इज इक्वल टू f बाई टी स्क्वायर, सो f इज व्हाट m l t इनवर्स 2 और डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, मतलब t का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा t स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई, दिस इज m l और t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इनवर्स ले आएगा, सो दिस इज व्हाट इनवर्स 4। तो अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई। अब बीटा फाइंड कर लो आप, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट f बाई टी, तो f की वैल्यू क्या m l t इनवर्स 2, अब ये डायमेंशन हो गया और t का डायमेंशन ओनली t, सो फाइनली बीटा हैज वैल्यू व्हाट m l t इनवर्स 3, तो ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू। अब इसमें सारे ऑप्शंस में आप मल्टीप्लाई कर करके चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको तुरंत ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है सोचो, फर्स्ट ऑप्शन है देखो आपके पास, क्या ये वैलिड होगा, आप चेक करके देख लो, दिस इज बीटा टी बाय अल्फा, बीटा टी बाय अल्फा, बीटा हैज वैल्यू व्हाट m l t inverse 3 and t is what, this is t and alpha is what here m l t minus 4। अब सॉल्व करके चेक कर लो अल्फा, ये आएगा क्या डायमेंशन लेस, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, ये चलो दोनों कैंसिल हो गया, t इनवर्स 2 और ये 3 वर्स 3 से 3 वर्स 3 कैंसिल हो गया, इनवर्स जाएगा ऊपर तो बना देगा t स्क्वायर, तो ये तो डायमेंशन लेस आया नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। सो बी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन क्या, अल्फा टी बाई बीटा, अल्फा टी बाई बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है देखो m l t माइनस 4 और इनटू t और बीटा, बीटा हैज वैल्यू m l और t माइनस 3। अब देखो m और l से m और l कैंसिल हो जाएगा, ml से ml कैंसिल, तो बचा क्या 3 वर्स 3 से 3 वर्स 3 कैंसिल, एक माइनस बचा और एक प्लस बचा, तो आपके पास आंसर क्या बच रहा है देखो t पावर माइनस 1 और एक और क्या बच रहा है t पावर प्लस 1। सो अब सोच के देखो ये दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, सो फाइनली वी हैव t पावर 0 एंड t पावर 0 इज मींस व्हाट, t power 0 means what, t power 0 means what 1, 1 is dimensionless, finally dimensionless, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आगे का ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक डायमेंशन लेस का ऑप्शन पूछा था मुझे, सेकंड में ही ऑप्शन मिल गया, तो थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, है ना। तो एक हो गया, ये है नीट 2024 का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसी में हम लोग देखो नीट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, नीट का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज नीट 2022, नीट 2022। अब इसमें क्या पूछा था, ये इसमें पूछा है कि मैच करो दो लिस्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपको मैच कंडीशन पूछा है, और लिस्ट 1 में क्या क्या गिवन है वो देखेंगे आप। लिस्ट 1 में गिवन है, ये लिस्ट 1 है आपका, लिस्ट 1, और इसमें है आपका लिस्ट 2, लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट में फिजिकल क्वांटिटी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 2 है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और नंबर 3 है आपका
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और एक नंबर 4 एक और है आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है, मतलब ग्रेविटेशन का जितना फिजिकल क्वांटिटी होता है लगभग पूछ ही लिया है ना। अब इनमें से सारे लिस्ट में वैल्यूज दिए हैं। अब वैल्यूज जो हैं ऑप्शंस में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास गिवन है, एंड दिस ऑप्शन इज व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप चूज करेंगे। तो 4 ऑप्शंस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। अब चारों में से आप, मैं ऑप्शन इधर उधर करके लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। तो Lt-2 एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है m इनवर्स में L³ और T इनवर्स 2, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास Lt-2, और एक और ऑप्शन है L² T इनवर्स 2। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब आपके पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, अब सबको मैचिंग करना है। सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, फटाफट चेक कर लेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम किसको कहते हैं, वो मुझे फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का पता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स से ही समझ में आ जाएगा कि कौन किससे मैच करने वाला है ना। अगर आपके पास नॉलेज है तो फटाफट आप मैच कर सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, G m1m2 बाय r स्क्वायर। इससे आप निकाल लोगे G का वैल्यू, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो G इज इक्वल टू व्हाट, F r स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। अब सबका फॉर्मूला रख दीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। F का हो जाएगा क्या, m l t माइनस 2, और r का होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मैंने बताया था लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, मतलब l, सो l स्क्वायर। और फाइनली कितना, m1 m2, m1 m2 मींस m1 मास है तो मास का भी m, m2 भी मास है तो वो भी m। एक m से एक m कैंसिल, बचा एक m, तो m गया ऊपर, हुआ m इनवर्स। अब देखो l और l स्क्वायर हो जाएगा L³ और t इनवर्स 2। अब देख लीजिए आप ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ गया, ये, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब सेकंड बोलता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो और आसान है, इसके लिए छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, वो माइंड में रख लेना, है ना। छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, वो माइंड में रख लेना। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि all types of energy have same dimension always, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, है ना, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सभी एनर्जी का जो है, और वर्क डन का, और एक और क्वांटिटी है ना टॉर्क का, सबका सेम डायमेंशन आता है। तो सेम डायमेंशन क्या, सारी एनर्जी का एक ही डायमेंशन आता है ऑलवेज, और वो एनर्जी हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2 या इनवर्स 2। तो ये डायमेंशन है, तो जहां कहीं भी मिलेगा वो दैट इज द ऑप्शन, है ना। तो ये ऑप्शन, अच्छा एक ही ऑप्शन मैंने 2 बार लिख दिया है शायद, तो एक ऑप्शन मिला दे रहे हैं, m l t इनवर्स 2 m l स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन। तो एनर्जी, एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी, चलिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है फॉर्मूला, mgh। मास का क्या होगा m, l g का है एक्सेलरेशन, सो lt इनवर्स 2, है ना। एक्सेलरेशन h इज द हाइट, हाइट का लेंथ l, तो सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, m l एंड l, l स्क्वायर और t माइनस 2। तो एनर्जी का एक डायमेंशन दिखा दिए, L इनवर्स 2, तो हर एक एनर्जी का सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी का लोगे सेम आएगा, है ना, कोई भी एनर्जी। तो एक डायमेंशन हो गया एनर्जी वाली, तो ये हो गई एनर्जी वाली डायमेंशन, ठीक है। 2, अब
नेक्स्ट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते किसको है भाई? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दो चीजें हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला और इसका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला माइंड में अगर आ जाए तो तुरंत आ जाएगा, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, बस छोटा सा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इससे आप फाइंड कर लेंगे इसका। और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का भी छोटा सा फॉर्मूला है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, छोटा सा फॉर्मेट है वो भी, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, आप इससे फाइंड कर लो। अब दोनों से देखो फॉर्मेट जो है बचा हुआ वो आ जाएगा, है ना। क्या क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग पहले से जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी हो सबका सेम। अब पर यूनिट मास, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ml² 3/2 और मास का हो जाएगा m, सो m से कैंसिल्ड आउट, बचा क्या? l² 3/2, सो डायमेंशन हो गया l² 3/2, सो देख रहे हैं इसका डायमेंशन यहां मैच कर रहा है l इनवर्स, है ना, l² 3/2। और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, इसका भी आप फाइंड कर लो। ग्रेविटेशनल फोर्स अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइंड की थी ग्रेविटेशनल, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स यहां है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है देखो G m1 m2 बाई r², और एक और होता है मास है, तो मास के लिए मान लिया m1, तो एक से m, मास से मास कैंसिल, बचा क्या? G इंटू m2 और r², निकाल लीजिए इसका G का, तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था ना, m इनवर्स l³ 3/2, तो इसको रख दो G की वैल्यू, m इनवर्स l³ 3/2 और ये हो गया इसका इंटू m का हो गया मास m और डिवाइडेड बाय r² मींस लेंथ स्क्वायर। अब जो देखो m इनवर्स से एक इनवर्स कट गया, आपके पास क्या क्या कैंसिल होगा? m से m इनवर्स कट जाएगा, l² से l² कट गया, एक l बचा, क्या बचा? lt -2, so this is the option lt -2, this is the fourth option, है ना। so आपके पास ऑप्शन ये हो जाएंगे नंबर 4 व्हाट दिस इज। तो ये हमारा क्वेश्चन, आपके पास बस माइंड में ये चले कि डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, अगर वो आपको पता रहे तो आप तुरंत उसका डायमेंशन मीट करा सकते हो, है ना। दिस इज द नीट क्वेश्चन ऑफ 2022 फ्रॉम डायमेंशन, है ना। एक और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे इस क्वेश्चन को भी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपका, है ना, नीट 2021 में, नीट 2021 में पूछा गया, और ये बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, ई बोल रहा है कि एनर्जी है, ई बोल रहा है एनर्जी है, और जी बोल रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी बोल रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अभी जस्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोगों ने डायमेंशन निकाला है ना। और देखो जस्ट डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाल रखा है m इनवर्स l³ 3/2, तो इसका तो डायमेंशन मुझे पता है पहले से, क्या होगा m इनवर्स l³ 3/2, और एनर्जी का अभी बताया ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, वर्क डन एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशन, क्या क्या m l² 3/2 सबका सेम। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ E बाई जी, यही है क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ E बाई जी। E और G का रेशियो फाइंड करने बोला है, और ऑप्शन ए ऐसा देता है, ऑप्शन ए नंबर दिया है m² l इनवर्स और T0, ये है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है m l इनवर्स एंड T इनवर्स,
और सी ऑप्शन आपके पास है m L0 T0 और डी ऑप्शन आपके पास है m स्क्वायर L इनवर्स 2 और T इनवर्स। तो ये ऑप्शन है आपके पास। अब इस ऑप्शन में आप चूज करो कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ये वेरी इजी क्वेश्चन है ना। सो डायमेंशन आपको पता है, ई का भी और जी का भी, दोनों का डायमेंशन रख दोगे आप, है ना। क्या हो जाएगा सोचो, E by G. So this is E is what? Energy. Energy has dimension ml square T inverse 2. ये हो गया एनर्जी। एंड G has value what? अभी अभी हमने लिखा है m इनवर्स L क्यूब T इनवर्स 2। आप डायमेंशन फाइंड कर लो। m इनवर्स ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो m और m क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, l पे आ जाओ, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, एक l बचेगा, एक l ऊपर जाएगा तो वो इनवर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, अब t पे आ जाओ, t इनवर्स 2 और t इनवर्स 2 तो डायरेक्ट कट गया, तो ये ऑप्शन ही नहीं बचा t का, तो ये और ये तो t इनवर्स डायरेक्टली कट गया, है ना। तो t का वैल्यू क्या आया, 0। तो ऑप्शन कौन सा है आप देख के खुद से बताओ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, m स्क्वायर L इनवर्स T0, m स्क्वायर L इनवर्स T0 इज द आंसर, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कब का, ये हो गया आपका नीट क्वेश्चन 2021, है ना, नीट क्वेश्चन 2021। एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा था 2020 आई थिंक, 2020 आई थिंक, हाँ, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस पूछा है 2020, नीट 2020। इसमें सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, what is the dimension of stress, dimension of stress। तो ये स्ट्रेस का डायमेंशन पूछा है आपसे। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डायमेंशन स्ट्रेस का फाइंड कर देना था। स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस मीन्स व्हाट, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप को डिफॉर्म कर देता हो, किसी फॉर्म को डिफॉर्म करेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर ध्यान से देखो तो ये फिजिकल क्वांटिटी, एक और क्वांटिटी है जिसका सेम डायमेंशन बताता है, किसका, प्रेशर का, क्योंकि प्रेशर भी होता है, अगर ध्यान से देखो तो प्रेशर भी होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां भी तो डिफॉर्मिंग फोर्स, चाहे फोर्स किसी तरह का फोर्स है तो फोर्स, और पर यूनिट एरिया, तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो प्रेशर का भी डायमेंशन सेम होगा, स्ट्रेस का भी डायमेंशन सेम होगा। और डायमेंशन अभी अभी मैंने फोर्स का लिखा था ऊपर, m L T इनवर्स 2, और एरिया का लेंथ इनटू लेंथ मींस L स्क्वायर, तो L स्क्वायर। एक L से एक L कैंसिल, एक L बच गया, ऊपर ले जाओ भाई, m L लेकर गया L इनवर्स, और T इनवर्स 2 हो जाएगा क्या, सिंपल। तो दिस इज द डायमेंशन। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस था जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी होता है, मतलब फाइनली अगर माइंड में कुछ रख लिया जाए, जितने में बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसमें जो समझने लायक है और याद करने लायक है। इस ट्रिक्स को अगर आप समझेंगे और याद करेंगे तो फाइनली इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, एकदम सॉलिड मार्क्स है आपका, जो भी पूछा जाएगा एकदम आसानी से आप बना सकते हो नीट में। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट फिर से आएंगे कभी लाइव, और फिर से कभी नेक्स्ट क्लासेस में और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।